बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I am Dr. Mudassir Shahbaz, Associate Professor of Anatomy at Sahara Medical College, Narwa. Today we are going to discuss about the introduction to the thorax. We are finished with our gross anatomy of the lower limb. And now we are going to discuss about the thorax. So before we start details of the thorax, we should have, in my opinion, we should have an introduction to the thorax so that it becomes easy for us to understand the thorax and to learn about the anatomy of the thorax. इससे पहले कि मैं अपनी वो डिस्कशन शुरू करूँ इंट्रोडक्शन थॉरैक्स के, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, and that thing is this slide. When I was searching on the internet about to prepare my this presentation, that the PowerPoint presentation, तो मैंने कुछ स्लाइड्स देखी जो कि मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग थी. And one of that slide is that I have seen. It is by the cosmic scientist. It's a site which prepared these things for the students. Here I have seen, what interesting was that I have seen a teacher, 43 years old teacher, female teacher, wearing a dress. This is not that she is not naked one. She is wearing a dress. इसने एक सूट तैयार करवाया जिसके ऊपर जो सूट में सारे मसल्स वगैरह और एनाटॉमिकली ये चीज़ें शो हो रही थी. इंटरनल बॉडी ऑर्गन, अब्डामन के और लंग्स, और इसके हैंड्स में देखें, आर्म में देखें तो इनके मसल्स वगैरह, इसी तरह लोअर लिम्ब में देखें तो मसल्स सार्टोरियस और दूसरे मसल्स, और ये सब नज़र आ रहे हैं. तो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा. इट्स वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी दैट द टीचर मेक्स एनाटॉमी क्लास इंटरेस्टिंग यूजिंग अ फुल बॉडी सूट that shows the inside of human body in sharp detail. She has worn this dress. She must have spent some time, some money to prepare this dress, and she has prepared it for the students. इसने ऐसा क्यों किया कि ये एनाटॉमी क्लास को सोच रही थी किस तरह के इंटरेस्टिंग बनाओ, जो कि स्टूडेंट के लिए एक बड़ा ही हैवी किस्म का सब्जेक्ट है. और ये टीचर ने 2 दफ़ा नहीं सोचा. शी डिड नॉट थिंक ट्वाइस अबाउट कॉस्ट इफ इट वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट. सो एक टीचर में यहाँ से एक डेडिकेशन ऑफ द टीचर that I have come to know that it's really appreciable. That in what sense you may agree, you may not agree with this, but she has thought about it to prepare such a dress, and she has done it for the benefit of the students. अच्छा हुआ ये कि कुछ दिनों बाद जब इसके हस्बैंड ने ये क्लासरूम के ये जो है वेरोनिका, इसका जो है ना वो इसको अपलोड किया, इसकी ये पिक्चर्स को, and she instantly went viral. यानी लोगों ने इसे बड़ा अप्रिशिएट किया that she is doing some benefit for the students. She became a symbol of creativity and dedication, and many shared their admiration. Surely the students of this 43 years old teacher are extremely lucky to have her, and they will never forget her. तो ये कुछ चीज़ें थे कि आप किस तरह चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं. जब भी आप किसी चीज़ के बारे में लर्न करना चाहते हैं या किसी को सिखाना चाहते हैं, if you want to teach someone, if you want someone to learn about this, so then how can you make that thing interesting for the students, that they should learn about, they should be happy in learning about it, and they should not forget it. एक बड़ी अच्छी स्लाइड थी, मुझे बड़ी पसंद आई, and I shared it with you, that
try to make the anatomy interesting. Even in the classroom or even you are studying yourself, try to create something interesting in it. Try to make the subject interesting. Then you will have I'm eager to know about more about this subject. तो फिर ही जब उसमें कोई इंटरेस्ट आपको नजर आएगा तो फिर ही आप उसके बारे में मजीद जानना चाहेंगे. इसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो नेट पे आप जाएं तो आप इसको इस टीचर की और भी आपको पिक्चर्स वगैरह मिल जाएंगी और हो सकता है इसके लेक्चर भी आपको इंटरनेट में मिल जाए. अब शुरू करने से पहले कि थॉरैक्स के शुरू करने से पहले कि हम इंट्रोडक्शन किसी भी चीज का करते क्यों है, व्हाई वी हैव इंट्रोडक्शन, व्हाई वी वांट टू हैव इंट्रोडक्शन टू अ थिंग. So when I was preparing, I was thinking that whenever you see, say this is some boy, name any name, give him to any name, and she's a girl, give her to any name. So when you look a boy or a girl, then you look at the whole body. जब आप किसी भी शख्स को देखते हैं, किसी भी लड़के को या लड़की को देखते हैं तो हम उसकी पूरी बॉडी की देखते हैं और उसमें क्या देखते हैं कि इसके बाल कैसे हैं, इसका नाक कैसा है, इसकी आंखें कैसी हैं, इसके कान कैसे हैं, इसके दांत कैसे हैं, ब्रश करता है क्या नहीं करता, इसके एक चेस्ट है, इसके एक आर्म है, अपर लिम्ब है, फिर इसमें एक लोअर लिम्ब है जिसमें नी है. तो पूरी बॉडी को पहले हम देखते हैं और फिर हम कहते हैं ओह यस, तो ये पूरी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है ना. और फिर जब हम इसको देखते हैं तो फिर हम इसमें पॉइंट आउट करते हैं कि हमने क्या देखना है इसमें. तो हम देखते हैं इसमें कि ये हमने ये वाला पार्ट स्टडी करना है, चेस्ट. तो जब हमें इसके बारे में पहले तो हमने एक ओवरऑल व्यू ह्यूमन बॉडी का हमारे जहन में होता है, फिर हम स्पेसिफाई कर लेते हैं चेस्ट को. तो फिर हम चेस्ट के मुतालिक सोचते हैं कि मैं चेस्ट में क्या सीखना चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू लर्न while I am studying or learning about the chest, what I want to do, what I want to see. और इसमें होता क्या है कि पहले जब आप देखते हैं तो फिर एक तो एक्सटर्नल अपीयरेंस आप देखते हैं ना कि एक्सटर्नली ये थॉरैक्स कैसे दिखता है, कहाँ से कहाँ तक है थॉरैक्स. और फिर आपके ज़हन में सवाल पैदा होता है कि इसके अंदर क्या क्या है. इसमें आपको यू कैन फील द रिब्स, यू कैन फील द sternum, you can feel the backbone, but आपके जहन में अब सवाल पैदा होते जाते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में आपके जहन में आता है कि मैं आखिर पढ़ना क्या चाहता हूँ. डिटेल्स तो हम बाद में देखते हैं, पहले हम जानना चाहते हैं कि ये ओवरऑल दिखता कैसा है और फिर हम जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है. आउटवर्ड्स तो हमने we have seen that there are ribs, there is a skin and there is other externally I can feel the bone and everything, but what is inside it. So वो जब मैं देखता हूँ इंट्रोडक्शन में कि यहाँ पे इसके अंदर तो लंग्स भी हैं, इसके अंदर तो हार्ट भी है, इसके अंदर जो है ना ये बिग वेसल्स भी हैं, ये एओर्टा भी है और इसके अंदर इसोफेगस भी गुजरती है और इसके अंदर से ये क्या कहते हैं ट्रेकिया भी इसके अंदर आता है और न्यूरोवास्कुलर बंडल भी होगा. तो ये सारी चीज़ें एक क्वेश्चन क्रिएट करती हैं कि आई वांट टू नो, बट बिफोर गोइंग इनटू डिटेल आई वांट टू नो लिटिल बिट आइडिया अबाउट अ होल पिक्चर इन माय माइंड, व्हाट आई एम गोइंग टू लर्न अबाउट, व्हाट आई वांट टू सी. सो इसी पर्पस के तहत हम इंट्रोडक्शन एक क्रिएट करते हैं दैट बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ एनीथिंग, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, वी शुड हैव अ इंट्रोडक्शन टू. जब हमें इंट्रोडक्शन हो जाता है, एक ओवरऑल पिक्चर नजर आती है, तो हमारे लिए फिर अब आसान हो जाता है कि हम इसको डिटेल में इसको अंडरस्टैंड कर सकें. तो इसीलिए हम फिर ये तैयार करते हैं प्रेजेंटेशंस, या हम देखते हैं कि जब भी आप देखें किसी भी बुक में पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर डायरेक्ट डिटेल में चले जाएं तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. तो एक ओवरऑल पिक्चर जब हो तो फिर हम उसकी डिटेल्स में जाते हैं, ठीक है ना. तो अब हम शुरू करते हैं कि हमने थॉरैक्स के मुतालिक क्या देखा. जब हम थॉरैक्स को देखते हैं तो हमारे पास एक तो बाहर एक हमें रिब केज फील होता है.
we feel a rib cage, we feel the ribs, and this is here is shown the rib cage. Inside it are the organs. ये इसमें जो बोन्स हमें नजर आ रही हैं, मसलन ये स्टर्नम नजर आ रही है, ये रिब्स नजर आ रही हैं, या ये इनके जॉइंट्स नजर आ रही हैं, and we are seeing here that how the ribs they are making joint with the sternum. और फिर ये कि क्लेविकल भी यहाँ पे स्टर्नम के साथ जॉइंट बना रही है. So we see a rib cage. In this rib cage located are the organs. हम देखते हैं कि इसमें ये साइडों पे लंग्स भी पड़े हुए हैं, फिर इसके अंदर ये ट्रेकिया आ रहा है, ये एक बड़ी सी वेन सुपीरियर वेन है कि वह एओटा, हार्ट भी इसमें पड़ा हुआ है, ये एक मिडल सा पार्ट है, साइडों पे लंग्स हैं और ये कवर्ड होते हैं मेम्ब्रेन वगैरह से. तो ये सारा हम स्टडी करेंगे. वी विल स्टडी ऑल दिस अबाउट द थॉरैक्स, कीपिंग दिस ओवरऑल व्यू इन आवर माइंड. अब हम थॉरैक्स को डिफाइन करते हैं. ये एक एक्सटर्नल पिक्चर है थॉरैक्स की. हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फर्स्ट रिब है, पहली रिब जो कि पीछे वर्टिब्रा से अटैच है आगे स्टर्नम से, और यहाँ पे ये रिब्स आपस में अटैच है और ये एक ऑब्लिक सी लाइन बना रहे हैं. तो थॉरैक्स एक्चुअली जब हम फील करते हैं अपनी बॉडी पे तो हमें फिर वहाँ पे भी फील हो सकता है. ये स्टर्नल आर्च हम फील करते हैं और ये ऑब्लिक एंगल जो है, ये लोअर एंगल, ये भी हमें लाइन फील होती है over our body. So thorax is an irregularly shaped cylindrical, यहाँ देखें ना सिलेंडर सा नजर आता है हमें, cylindrical with a narrow opening superiorly, यहाँ पे देखें छोटी ओपनिंग है, and relatively large opening inferiorly, और नीचे देखें आपको ओपनिंग जरा बड़ी नजर आती है. So thorax को हम यूं डिफाइन करते हैं कि ये एक बॉडी का पार्ट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप है और इसकी ओपनिंग जो सुपीरियरली जो है वो नैरो है, एंड दैट इंफीरियरली द ओपनिंग इज वाइड वन. सो बिफोर वी स्टार्ट इन द डिटेल्स, हम चाहते हैं कि हम ओवरऑल अब अपनी बॉडी पे कैसे लोकेट करेंगे वेयर इज द थॉरैक्स. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये स्टर्नल लॉच है, ये इसके साथ ही स्टर्नोक्लेविकुलर एंगल है, फिर यहाँ पे क्लेविकल है, ठीक है, और पीछे अगर हम देखें तो बैक पे आ जाएगा स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7. नीचे हम अगर देखें तो ये ज़िफॉइड प्रोसेस, ये कॉस्टल आर्च बन रही है जो रिब्स की वजह से इसको लिए कॉस्टल आर्चेस कहते हैं. फिर पीछे चले जाएंगे तो 11, 12 और रिब्स 12th एंड 11th रिब और वर्टिब्रा T12 आ जाएगा पीछे. अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसके बाहर तो ये इसकी लिमिटेशंस हमें पता लग गई. अब इसकी एक थोरेसिक वॉल है एंड इनसाइड अ थोरेसिक कैविटी. अब हम जानना ये चाहते हैं, ये तो हमें थॉरैक्स की लिमिटेशंस पता लग गई ना कि ये सुपीरियरली किससे बाउंड है, इंफीरियरली इसकी लिमिटेशंस क्या है थॉरैक्स, और इससे नीचे एब्डोमेन शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर फिर हेड एंड नेक शुरू हो जाएगा. अब इसमें दो चीजें, एक थोरेसिक वॉल है और एंड अ थोरेसिक कैविटी. अब थोरेसिक वॉल क्या है? वॉल जिसने के अंदर जो ऑर्गन्स है उनको एनसर्कल किया हुआ है. यहाँ पे हम देखेंगे कि देखते हैं कि थोरेसिक वॉल किस किस चीज से बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी फॉर्मेशन क्या है. यानी ये आपको ये रिब्स नजर आ रही हैं ऊपर और नीचे रिब्स, ये रिब्स के दरमियान में एक स्पेस है, इस स्पेस खाली नहीं है, दैट इज फिल्ड विद द मसल्स. ये 1, 2, 3 किस्म के मसल्स यहाँ पे रिब्स में है, और फिर इन्हीं रिब्स के दरमियान ये स्पेस में जो रिब के अंडर कवर ऑफ द रिब्स ये न्यूरोवास्कुलर बंडल रन करता है. अब हमने और पीछे हमको ये वर्टिब्रास नजर आ रहे हैं. सो हमने और आगे स्टर्नम नजर आ रहा है. स्टर्नम के ये एक दो पार्ट, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला ये पार्ट, और थर्ड पार्ट ये मोस्ट इंफीरियर ये नजर. तो हमने अब थोरेसिक वॉल को जब पढ़ना है तो उसमें हमने देखना है कि ये रिब्स ये कैसी दिखती हैं, हाउ दे लुक्स, वर्टिब्रा कैसे होते हैं, स्टर्नम कैसे होती है, उसके जॉइंट कैसे बनते हैं, ये रिब्स का ये जो जॉइंट बनता है बिटवीन द रिब्स एंड द ब्लू पार्ट दैट इज द
कास्टोकॉन्ड्रल जॉइंट, ये कैसे बनता है? ये मसल्स जो हमें नजर आ रहे हैं, वी आर लुकिंग एट दीज मसल्स एंड द डायरेक्शन ऑफ देयर फाइबर, व्हाट इज देयर नेम, if it is external one, internal and innermost, how they are arranged, where this neurovascular bundle is located. These are the questions now in our mind. We want to know about the thoracic wall. Anteriorly, anterolaterally, how it is bounded by the ribs and intercostal spaces, and posteriorly, how it is bounded by the vertebra. And what are the levels, vertebral levels and different levels that we want to know. Okay, so we will study the thoracic wall in this way, and we will study in detail all the things. Cavity, we should be able, the cavity is, chest cavity is the cavity which is enclosed inside this thoracic wall. जो ये thoracic wall है, इसके अंदर जो cavity है, वो cavity जो है ना, उसको हम chest cavity कहते हैं. It is enclosed by the 12 pair of ribs. जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे आप ribs को काउंट करें, पिछली स्लाइड में भी आपने देखा. आगे क्या है? स्टर्नम है. पीछे क्या है? पोस्टीरियरली इन्फीरियर बाय द डायफ्राम. ये देखिए, ये डायफ्राम पड़ा हुआ है यहाँ पे. हमने क्या होता है इसका नतीजा? Consequently, nearly lower half of the thoracic wall surrounds the, इसमें इस स्लाइड में आप अगर आप देखें तो ये जो इसका लोअर पार्ट है, असल में इसके नीचे जो डायफ्राम पड़ा हुआ है, that is dome shaped, that is projecting into the thorax, uncovered by the ribs. इसका मतलब ये है कि chest cavity जो है वो is covered by the ribs and diaphragm, but ये lower ribs, they are also covering the abdominal vital organs. मेरा ख्याल है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये जो डायफ्राम की डोम शेप है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो विसरास एब्डोमेन के है, दे आर कवर्ड बाय द लोअर रिब्स, दे प्रोटेक्टेड बाय द लोअर रिब्स. और चेस्ट कैविटी जो है वो डायफ्राम और इसके चेस्ट थोरेसिक वॉल के दरमियान जो स्पेस है, दैट इज चेस्ट कैविटी. ये जो कैविटी है विच इज inside the below the diaphragm, that is abdominal cavity, and there are vital viscera of the abdomen which are protected and covered by the lower half of the thoracic wall. यहाँ पे abdominal viscera है rather than thoracic viscera. उसमें liver, यहाँ पे अगर liver पड़ा होगा तो it will be protected by the ribs. It's very important to understand, because the liver is a very vital organ and delicate organ and needs protection. So nature has provided protection in such a way that the lower half of the thoracic wall is actually covering the inside, the below the diaphragm, the liver, to protect it from the trauma. But the thoracic cavity is between the diaphragm and the thoracic wall. इस तरह क्या होता है, इससे क्या होता है कि thoracic cavity, thorax और इसकी cavity जो है वो much smaller than one might expect based on the external appearance of the chest. जब आपको बाहर से जो इसकी नजर आ रही है, इसकी चेस्ट की जो appearance, वो हो सकता है बहुत छोटी हो as compared to the ये जो actually हमें ये रिब्स का नजर आ रहा है. ऑब्वियसली अगर हम अगली स्लाइड पे भी जाएं या इससे अगली स्लाइड पे जाएं तो ये जो चेस्ट कैविटी है वो तो ये अपर डायफ्राम और इसके दरमियान है thoracic wall. ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये कवर, ये इसके दरमियान आ रहा है, रिब्स के नीचे. सो चेस्ट कैविटी इटसेल्फ बिकम स्मॉलर, एक्सटर्नल अपीयरेंस. सो this concept is to know is very important. एक और चीज के चेस्ट कैविटी और प्लूरल कैविटी को डिफरेंशिएट करना. प्लूरल कैविटी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द चेस्ट कैविटी. वो कैसे कि जो प्लूरल कैविटी है, एक्चुअली इट इज अ स्पेस बिटवीन द,
ये अगर लंग्स हैं तो लंग्स को ये कवर किया हुआ है एक लेयर ने, जिसको हम प्लूरा कहते हैं। यहाँ पे देखें इसके हाइलम पे ये लेयर डाइवर्ट कर जाती है मीडियन, पहले मीडियस्टाइनम पे यानी मीडियन पार्ट पे, फिर ये कवर करती करती डायफ्राम पे आ गई और फिर ये चेस्ट वॉल पे चली गई। तो ये जो लंग्स के ऊपर एक लेयर है प्लूरा की, इसको कह देते हैं विसरल, क्योंकि ये विसरा के ऊपर है, और बाहर जो है ये इसको कह देते हैं प्राइटल, क्योंकि ये पेरिफेरी पे है। और इसके दरमियान जो ये स्पेस है इसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। देखिए ये राइट प्लूरल कैविटी और ये लेफ्ट प्लूरल कैविटी। जो चेस्ट कैविटी है वो है जो थोरैक्स वॉल कवर कर रही है चेस्ट को, उसके अंदर जो कैविटी है उसमें सारे ऑर्गन्स और हर चीज आ जाती है, वो एक ब्रॉडर है। उस चेस्ट कैविटी के अंदर जो प्लूरा पड़ा हुआ है जो कि कवर कर रहा है लंग्स को भी और चेस्ट वॉल को भी, उसके दरमियान जो स्पेस है उसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। सो प्लूरल कैविटी इज नॉट द चेस्ट कैविटी। कहीं कहीं पे कुछ बुक्स में इसको एज अ मिसनोमर जो है ना, इसको एक भी गिना जाता है, क्योंकि चेस्ट वॉल की जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, यहाँ पे अगर हम देखें कि ये चेस्ट वॉल है तो ये जो इसकी इनर मोस्ट लाइनिंग है वो तो प्लूरा ही बनती है। तो वो इसलिए वो ये ख्याल करते हैं कि ये जो प्लूरा क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है चेस्ट वॉल के साथ, थोरैसिक वॉल के साथ, तो कहते हैं कि इसके अंदर भी जो होगा वो सारे का सारा कैविटी में सारे ऑर्गन्स पड़े हुए। तो वो कहते हैं, वो ये थिंक ओवर करते हैं कि भाई इसका मतलब ये है कि प्लूरल कैविटी लंग्स और इसके दरमियान तो है, विसरल उसके दरमियान, लेकिन यह कि इसके प्लूरा के जो प्राइटल प्लूरा है इसके अंदर भी तो सारी कैविटी में वही ऑर्गन्स है जिसको हम चेस्ट कैविटी के अंदर गिनते हैं। ये कहते हैं कि द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द चेस्ट कैविटी, सेम ऑर्गन आर प्रेजेंट इनसाइड द प्राइटल प्लूरा। डिफरेंस इज दैट द लंग्स दे आर कवर्ड विद द विसरल प्लूरा। सो वो एक ही चीज गिनते हैं, कहते हैं कि प्लूरल कैविटी आप उसको कहें या उसको चेस्ट कैविटी के, वन एंड द सेम थिंग। In my opinion, not so. The pleural cavity, we should understand that this is entirely different from the chest cavity. Chest cavity is covered by the thoracic wall and diaphragm, and the pleural cavity is a space between the two pleura. The pleura, one pleura which is covering the chest wall or diaphragm or the mediastinum, and one pleura which is covering the lung. So this is pleural cavity, which is entirely related with the covering of the lungs, not with the other parts of the body. So we should be able to differentiate between the chest cavity and the pleural cavity. अब यह कि before we start some little bit detail of the all this what we are going to learn in the thorax, तो पहले हम देखते हैं एक्सटर्नली हम इसको थॉरक्स को कैसे देखते हैं, हम बोनी लैंड मार्क्स थॉरक्स के क्या है। अब इस स्लाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे सारे वो बोनी लैंड मार्क्स आप अपनी बॉडी पे भी फील कर सकते हैं, और इन माय ओपिनियन वन शुड फील these points over the body to have a better understanding of the things before start learning about it. So here is the these are the muscles showing of the head and neck, but here is the notch which is the named as suprasternal notch. That's a gap, a notch above the, here is the suprasternal notch above the sternum, suprasternum. Between the two parts of the sternum, that protruded part of the sternum which you can feel below the suprasternal notch, that is named as manubrium sterni or sternal angle. So the here is the sternal angle. So part of the sternum between the sternal angle and sternal notch, here will be the manubrium sterni. Below will be the body of the sternum, and the lowest mode part is the xiphoid process. If you feel laterally,
The big muscle, pec major, which we have studied in the upper limb, it is originating from the chest wall and the sternum, so that can be felt covering the chest wall, the pec major. And then we should feel the we have studied in the upper limb about the axilla. So anterior axillary fold we can see here. So below is the costal margin, that the ribs you can feel on your own body, the costal margin. Okay, and the position of the nipple and areola that you study with the breast. So their location, their importance, that you will see, and the site of the apex beat you feel, it is shown here. We will study these things in details, but one should know about the bony landmarks of the thorax over its own body by getting them over the chest. And then you imagine that the organs, they are inside place. So first thing that you start learning about the thorax, very first thing is the thoracic cage. Cage, pinjra, covering the organs. So this cage means this cage is actually having the vital organs inside it and covering them, protecting them, not allowing external forces to act upon them and protecting them. So that's why this is called as thoracic cage. अब इस thoracic cage में हम क्या देखते हैं कि thoracic cage में क्या क्या है. अब अगर देखें हम यहाँ पे तो thoracic cage में पहले तो यहाँ पे है कि 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसके बाद फौरन बात शुरू होता है फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा. तो एक तो पहली चीज फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा यानी पहले वाला, और फिर आखिरी वर्टिब्रा ये T12 वर्टिब्रा. अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि आगे जो है बोन पड़ी हुई है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, जिसके 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं, मैन्यूब्रियम, बॉडी और ज़िफाइड प्रोसेस. इनकी डिटेल हम we will study in detail about this bone, this sternum, very important bone. फिर हम इन joints का देखेंगे कि ये joints, what is their name and what kind of joints are these? Are these synovial? Are these cartilaginous, primary cartilaginous, secondary cartilaginous, or synovial joints? And then we will study these joints between the cartilages of the 7th, 8th, 9th, 10th, and what kind of joints are they, how they make joint with each other, costal cartilages and the ribs. And then here we see the true ribs and false ribs, why they are called true ribs, why this is called as the false ribs. So हम ये भी स्टडी करेंगे इसमें डिटेल से. यानी जब हम thoracic cage देखेंगे then we will learn in detail about the sternum, the ribs, typical ribs, false ribs, and also the vertebrae from T1 to T12, how they look like, what are their features. And this is called a jugular notch, another name given to it because here the right and left internal jugular veins and external jugular veins, they unite with each other here by through a anastomosis. This is also called as a jugular notch. जब हम इसके मतलब thoracic cage के मतलब एक इंट्रोडक्शन हो जाता है, यानी कि आगे हमने स्टर्नम पड़ी हुई है, इसके साथ अटैच है रिब्स, और पीछे पड़े हुए हैं वर्टिब्रा जिसके साथ जॉइंट बना रही है रिब्स, सारी 12 की 12 रिब्स. वी विल स्टडी, वी विल लर्न इन डिटेल अबाउट दिस. तो इसमें सबसे पहले हम बोन्स देखेंगे. तो बोन्स में हमने पहले वही देखा कि ये बोन्स हमें नजर आ रही हैं. इसमें हमने देखा स्टर्नम है, फिर thoracic वर्टिब्रा हमने देखना है, फिर ये रिब्स को हमने देखना है, फिर कॉस्टल कार्टिलेजेस को देखना है, फिर ट्रू जो है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, ट्रू जो कि रिब्स जो जॉइंट बना रही हैं स्टर्नम के साथ, और फॉल्स रिब्स को देखना है जो कि वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब्स हैं, यानी कि जो आपस में कार्टिलेजेस के साथ जॉइंट बना रही हैं
और आगे सिर्फ 6 और 7 वही जॉइंट बना रही हैं इसके साथ, स्टर्नम के साथ। जो 8th 9th 10th है वो जॉइंट नहीं बना रही। और आगे अगर देखें तो नीचे हम देखें 11वीं और 12वीं रिब्स वो मुकम्मल ही नहीं है, दे आर इनकम्प्लीट रिब्स, दे आर नॉट फुल रिब्स, सो दे नेम्ड एज फ्लोटिंग रिब्स और फॉल्स रिब्स। इसके बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे कि क्यों उनको कहते हैं और डेवलपमेंट अगर क्या रीज़न है, हो सकती है या नहीं हो सकती। सो ये हम देखेंगे चेस्ट वॉल की बोन्स के बारे में। सो सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे रिब्स कैसी दिखती हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि टिपिकल रिब्स कैसी होती हैं और नॉन टिपिकल रिब्स कैसी होती हैं। सो इसमें जब हम इसको देखेंगे, बुक में जाएंगे तो हम स्टडी करेंगे कि ये रिब्स जो है ये मतलब ये अगर फर्स्ट रिब है और ये सेकंड रिब है, ये हाउ दे लुक लाइक, हाउ दे डिफर फ्रॉम अदर रिब्स, why they are called as the atypical ribs, what is the reason that they are called as atypical ribs, not the typical ribs, and what are the features of these ribs, how they make joint with the vertebra and the sternum, and what's is the important, why there is single facet over the head of this, what are the parts of the ribs, head, neck, body, and what is this tubercle. Then we will come to the typical rib, because typical means most of the ribs they look like this. First, second, and 11th, 12th, they are not the typical ribs. They are, because the first, second, they are different in the shape and different in the features from the typical rib. So here the 8th rib has been shown, a typical rib, having a head, neck, tubercle, then there is an angle, then there is a body of the rib, and then there is the cup for the costal cartilages. We will study, we will learn how it is placed in our body and how it makes joints with the vertebra and with the cartilages. We will study in detail. We are just having an introduction that first rib, second rib, they are called as atypical ribs. We will study why they are called as atypical ribs, and also that the 11th one and the 12th one, they are also called as the atypical ribs. Why they are called atypical ribs? What is difference between the atypical ribs and a typical rib? These atypical ribs, how they differ from a typical rib? What are the features that they are called as atypical ribs? We will study in detail while we will start the thorax. Then we will study in detail the sternum, the parts of the sternum bone, where it is located, what are the parts, the manubrium, the body, and the xiphoid, and how they look like, what are the joints that are made over the sternum, what is the importance of the sternal angle, and how it look like laterally. You see here, these are the facets for the joints, for the clavicle, for the first rib, for the second rib, for the third, fourth, and so on. So we will study in detail the features of the bone as well as the joints made by the bone, and separately manubrium, body, and the xiphoid process. We will study in detail, but initially we want to have an overall look of the sternum. The detail we will learn about it. We will see what are the joints made by the bony cage. Here you see the sternum is making joint with the sternocostal joints with the costal cartilages of the ribs. Here is the costocostal joints.
first, second, third, fourth, and up to the seventh rib. There, sixth and seventh rib. They are making joint with the sternum. Intercondylar joints between the costal cartilages of the 7th, 8th, 9th, and 10th. Here you see, here is the joints they are made between them. The 8th is making joint with the 7th one, and the 9th with the 8th one, and 10th with the 9th one. 3 joints. So intercondylar joints. What are the features of these joints? We will study in detail later on. We will discuss the thorax in detail. Then we will have a look over the vertebrae which are located in the thorax region. Starting from the thorax, they are named as T, means thorax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So there are 12 thoracic vertebrae. T1 to T12 12 वर्टिब्रे हैं. हमने देखना यह है कि इंडिविजुअल वर्टिब्रा में ये बाकी वर्टिब्रा से किस तरह से डिफर करते हैं, क्योंकि सारे वर्टिब्रा में से स्पाइनल कार्ड तो गुजरना है, तो इसमें एक स्पाइनल कैनाल तो होगी, लेकिन क्या ऐसी फीचर है जो कि थोरेसिक वर्टिब्रा में है बाकी में नहीं है. सो वो फीचर हमें मिलती है. एक बॉडी तो होगी, इसमें बॉडी के साथ इसमें ये पेडिकल भी होगा, फिर ये स्पाइनस प्रोसेस भी होगा, फिर लेमिना भी होगा, सब कुछ होगा. लेकिन ये जो फेसेट है, ये वाले फेसेट जो कि रिब्स की आर्टिकुलेशन के लिए हैं, ये बाकी जो वर्टिब्रा उन पे तो नहीं होंगे ना. सो रिब्स की आर्टिकुलेशन जो होती है थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ, इसीलिए इनको थोरेसिक वर्टिब्रास कहते हैं, बिकॉज ये लिमिट करते हैं चेस्ट कैविटी को पोस्टीरियरली. ठीक है जी, जो पोस्टीरियर पीछे की तरफ जो लिमिट्स है फॉर द थोरेसिक कैविटी इज फ्रॉम T1 टू T12. इसके नीचे फिर अब्डोमिनल कैविटी शुरू हो जाती है. तो इसलिए हमें इनको देखना है. इनकी हम देखेंगे कि फीचर्स क्या हैं, टिपिकल वर्टिब्रास कौन से हैं, एटिपिकल वर्टिब्रास कौन से हैं. इन वर्टिब्रास के दरमियान जो डिटेल फीचर्स हैं वो हम स्टडी करेंगे, हम लर्न करेंगे. उसमें एक और स्लाइड थी जिसमें कि हम ये थोरेसिक वर्टिब्रा को इन डिफरेंट व्यूज के साथ हम स्टडी करेंगे. ठीक है ना. तो ये जैसे कि ये आर्टिकुलर प्रोसेस शो की है, फेस फॉर द ट्यूबरकल ऑफ द रिब. यहाँ पे फिर ये फेसेट फॉर दी, ये क्या कहते हैं, फॉर दी रिब्स, वो भी प्रेजेंट है. ये देखें, ये सुपीरियर कॉस्टल फेसेट है, ये इंफीरियर कॉस्टल फेसेट है, और ये फिर हम इनको डिटेल से देखेंगे. फिर इसमें जो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना है जहाँ से थोरेसिक नर्व निकलती है, तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे निकलती है, और फिर टिपिकल थोरेसिक नर्व कैसी होती है वो भी हम डिटेल में. वर्टिब्रा की जो ओवरऑल है, जो बाकी वर्टिब्रा में भी है, उसमें डिफरेंस हम देखेंगे क्या क्या है. जैसे बॉडी है, पेडिकल है, फिर ये लेमिना है, फिर स्पाइनस प्रोसेस है, और ये फिर ट्रांसवर्स प्रोसेस है. ये किस तरह बाकी वर्टिब्रा से डिफ्रेंशिएट करता है, कि हमें पता चले वर्टिब्रा को देखते ही कि ये थोरेसिक वर्टिब्रा है, ये सर्वाइकल नहीं है, ये लंबर वर्टिब्रा है, बल्कि ये थोरेसिक वर्टिब्रा है. तो ऐसी कौन सी फीचर्स होंगी जो कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम थोरेक्स में वर्टिब्रा को पढ़ेंगे. फिर हम देखेंगे कि ये वर्टिब्रा जो है, ये जॉइंट्स रिब्स जो बना रही है, ये कैसे बना रही हैं, ये रिब्स के कौन कौन से जॉइंट बनते हैं, रिब्स के जो पोस्टीरियरली वर्टिब्रा के साथ कौन सी चीज़ हेड उसका कैसे आर्टिकुलेट करता है, फिर उसकी जो है एंगल कैसे रिब का बनता है, फिर ये कर्व करके, क्योंकि ये एक सिलेंड्रिकल है तो इसलिए थोरेक्स सिलेंड्रिकल है. सो हियर इज एन एंगल ऑफ द रिब. फिर रिब्स दैट मूव्स इंटीरियरली, anterolaterally and anteriorly, it is attached with the sternum. So we will see it in detail how these joints are made and the features of the rib we will study in detail. फिर हम देखेंगे कि हमें आखिर इनका पढ़ने का फायदा क्या है. ये रिब केज हमने पढ़ा, इसके जॉइंट पढ़े स्टर्नम के साथ, और फिर हमने
वर्टिब्रा के साथ, तो इसका हम क्योंकि यहाँ पे इन जॉइंट्स पे मूवमेंट दो होती है जो कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स जिनको हम कहते हैं, और उसमें एक मूवमेंट है पंप हैंडल और एक हमारा मूवमेंट है बकल हैंडल। तो हमने ये देखना है कि पंप हैंडल मूवमेंट आखिर कैसे होती है, किन जॉइंट्स पे प्रोड्यूस होती है और इसका फायदा क्या होता है, और फिर हमने देखना है कि बकल हैंडल मूवमेंट ये कहाँ पे होती है और फिर इसका फायदा क्या है, ये कौन सा। अब जब आपकी चेस्ट एक्सपैंड होती है तो दो डायरेक्शंस में एक्सपैंड होती है, एक इसकी डायरेक्शन होती है एंट्रोपोस्टीरियरली और एक ट्रांसवर्स है। तो हमने ये देखना है कि ये जो पंप हैंडल है ये एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर को इंक्रीज करने में किस तरह के हेल्पफुल है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है। फिर हमने ये देखना है कि ये जो लोअर रिब्स हैं जो कि आपस में कॉस्टल कार्टिलेज जॉइंट बनाती हैं, तो लोअर रिब्स में ये बकल हैंडल मूवमेंट कैसे होती है और ये फिर ट्रांसवर्स डायमीटर कैसे बढ़ा देती हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है जी, तो ये हमने देखना असल में ये जॉइंट्स को क्यों डिटेल में डिस्कस करना है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये दो मूवमेंट्स बकल हैंडल और पंप हैंडल ये कैसे पॉसिबल हैं और फिर इनका बेनिफिट क्या है, ये भी हम देखेंगे कि ये इनको कौन कौन से मसल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, जब हम ये थोरेसिक बोन्स ऑफ थोरेक्स ये पढ़ चुकेंगे फिर हम जाएंगे थोरेसिक वॉल पे। पहले हम तो देखेंगे ना सुपरफिशियली, ऊपर क्या होगी, स्किन होगी, सुपरफिशियल फेशिया होगा, फैट होगी, कुटेनियस नर्व होंगी, सुपरफिशियल वेसल्स जिनमें आर्टरीज और वेन्स होंगी, फिर उसमें सुपरफिशियल क्योंकि ये ब्रेस्ट जो है ये मॉडिफाइड ये स्वेट ग्लैंड होता है तो इसलिए इसको जो है ना ये स्किन में अंदर ही डिस्कस किया जाता है। फिर उसके नीचे डीप फेशिया होगा, फिर उसके नीचे मसल्स ऑफ थोरेक्स वो थोरेसिक वॉल्स होंगे जिसमें वो मसल भी होंगे जो कि थोरेक्स से अटैच होके थोरेक्स से ओरिजिनेट होके अपर लिम्ब पे जा लगते हैं या ये थोरेक्स से निकल के फिर स्कैपुला पे जा लगते हैं जो कि हम अपर लिम्ब में पढ़ चुके हैं, और कुछ मसल ऐसे हैं जो कि थोरेसिक वॉल के अपने हैं जो कि थोरेसिक लेयर में बिटवीन दी टू रिब्स ये हमें नजर आ रहे हैं ये मसल्स। तो एक तो मसल्स वो हैं जो कि थोरेक्स से जा रहे हैं टूवर्ड्स दी अपर लिम्ब एंड टूवर्ड्स द स्कैपुला, और दूसरे मसल्स में जो बिटवीन द रिब्स प्रेजेंट हैं जो इंटरकॉस्टल स्पेस में है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो लेयर्स जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे स्किन को, सुपरफिशियल फेशिया को, फिर उसके बाद ये डीप फेशिया को, फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं मसल्स को, और फिर ये इंटरकॉस्टल स्पेस को देखेंगे। फिर उसके अंदर जो हम देखेंगे ये फिर हम क्या कहते हैं लूज एरियल टिश्यू, फिर सबसे इनसाइड जो है ये सीरस मेम्ब्रेन यानी प्लूरल मेम्ब्रेन सबसे इनसाइड देखेंगे। तो हम पूरी चेस्ट वॉल को इस तरह से स्टडी करेंगे क्योंकि रिब्स को हम सेपरेटली करेंगे, बाकी चेस्ट वॉल जो है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, मसल्स, डीप फेशिया, ब्रेस्ट एंड द डीप फेशिया की फॉर्म्स जो हैं और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का है और ये कैसे कैप्सूल की तरह एक्ट करता है, और इसको हम सारा देखेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्लूरा सीरस मेम्ब्रेन प्लूरा कैसे अटैच है। सो ये थोरेसिक वॉल हम भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम लेयर्स ऑफ थोरेसिक वॉल में ये देखें जैसे यहाँ पे शो किया गया, तो हम लेयर्स को भी देखेंगे, ये स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, फिर ये सेरेटस एंटीरियर मसल्स है, फिर वो अंदर जो आ जाता है जो बिटवीन द रिब्स है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल, इनर मोस्ट, फिर हमने देखना है न्यूरोवास्कुलर बंडल कहाँ रन कर रहा है। फिर हम ये वाली लेयर्स को देखेंगे कि ये डीप फेशिया की ये एक लेयर है, प्राइटल लेयर, ये प्राइटल प्लूरा की लेयर है, फिर ये लंग्स के ऊपर विसरल प्लूरा, इनके दरमियान ये प्लूरल कैविटी है, यानी कि हमारी चेस्ट वॉल प्राइटल प्लूरा तक जाएगी, ठीक है ना। और इसके दरमियान जो है ये थोरेसिक फेशिया होगा जो कि डीप फेशिया की फॉर्म है, एंडोथोरेसिक फेशिया, प्राइटल प्लूरा और ये चेस्ट वॉल के दरमियान ये वाली लेयर जो है एंडोथोरेसिक फेशिया होगी जो कि डीप फेशिया की फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये हम लेयर्स ऑफ थोरेसिक वॉल डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने और एक स्लाइड ली थी जिसमें हमने दिखा था कि ये
मसल्स कैसे हम डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल, इनर मोस्ट और फिर न्यूरोवास्कुलर बंडल। फिर ये कि हम जानना चाहते हैं कि थोरेसिक इनलेट एंड आउटलेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और थोरेसिक इनलेट एंड आउटलेट के बारे में जानना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पहले कि थोरेसिक इनलेट, इनलेट यानी एंट्री, यानी हम अगर ऊपर से देखें तो फिर ये फर्स्ट रिब, आगे ये मैन्यूब्रियम स्टर्नाई, पीछे T1 वर्टिब्रा का अपर बॉर्डर, और ये आ गई क्लेविकल का पार्ट, क्लेविकुलर जॉइंट, ये हो गया इनलेट, थोरेसिक इनलेट। इसको वैसे स्पीयर थोरेसिक अपर्चर भी कहते हैं, और इसको हम थोरेसिक आउटलेट भी कहते हैं। अब वो ये दो डिफरेंट नेम डिफरेंट तौर पे यूज होते हैं। जो सर्जिकल एनाटमी है उसमें हम इसको आउटलेट गिनते हैं, क्योंकि ग्रेट वेसल्स दे आर कमिंग आउट ऑफ द thorax to enter into the limbs and also moves towards the brain, carotid arteries these and subclavian coming out. इनसाइड जो मूव कर रही हैं वो नर्व्स हैं, जो कि नर्व्स हैं, और ये थोरेसिक डक्ट भी बाहर आ रही है, इसोफेगस अंदर जा रही है, ट्रिकी अंदर जाएगा, ये नर्व्स जाएंगी, वेन्स जाएंगी, ठीक है ना। तो ये इसलिए इसको कुछ लोग एनाटमिस्ट जो है वो इनलेट गिनते हैं, लेकिन सर्जिकल एनाटमी इसको आउटलेट भी गिनते हैं, ठीक है ना जी। ये इनलेट, और ये ऑब्लिक होता है, ये स्ट्रेट नहीं होता, तो वो इसलिए यानी कि ये इस फिगर में अगर देखें तो ये आपको इट इज रनिंग डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्रॉम द T1 वर्टिब्रा, इट इज नॉट स्ट्रेट वन, इट इज ऑब्लिक वन। ये अगर T1 वर्टिब्रा है और ये है मैन्यूब्रियम स्टर्नाई और ये इसका सुप्रास्टर्नल नॉच, तो ये डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड रन कर रहा है। तो ये इसका अपर मार्जिन है, ये 1 और 2, ये थोरेसिक T2 वर्टिब्रा के लेवल पे जा इसका मिलता है। तो इसकी ये जो ऑब्लिकनेस है वो ये इसको शेप देती है, ये थोरेसिक इनलेट को। इसके अंदर जो वेसल्स वगैरह है और जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये बड़ा एनाटमी में क्वेश्चन भी आ जाता है कि थोरेसिक इनलेट को ड्रा करें और इसमें ये स्ट्रक्चर करें। तो इन माय ओपिनियन अगर ये क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, तो ये वाली डायग्राम क्यों, ये है कि क्योंकि ये सिंपल है, इजी टू ड्रा है, और तकरीबन इसमें आप सारे स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। देखें इसमें इसोफेगस भी आप दिखा सकते हैं, इसमें ट्रिकिया भी दिखा सकते हैं, इसमें आर्टरीज की पोजीशन भी दिखा सकते हैं, इसमें वेन्स की पोजीशन भी दिखा सकते हैं, इसमें आप ये नर्व जो है सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी और ये सिंपैथेटिक ट्रंक की जो है ये भी दिखा सकते हैं, वेगस नर्व भी आप यहाँ दिखा सकते हैं, लंग्स को दिखा सकते हैं। तो इन माय ओपिनियन ये वाली डायग्राम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इजी है कि ये अगर इसको प्रैक्टिस करें तो थोरेसिक इनलेट पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इजीली यहाँ पे वो शो कर सकते हैं। तो मेरी ओपिनियन में इस डायग्राम को ट्राई करना चाहिए, स्टूडेंट को ड्रा करना चाहिए और लर्न करना चाहिए। और थोरेसिक इनलेट की डेफिनेशन में ये ऑब्लिकिटी यहाँ से हमें समझ आ जाती है कि ये T1 और T2 वर्टिब्रा है, तो ये जो सुप्रास्टर्नल नॉच है ये T2 वर्टिब्रा पे जा रही है, ये स्टर्नल एंगल नीचे है, तो ये इसकी ऑब्लिकिटी ऑफ द थोरेसिक इनलेट हमें समझ में आ जाती है। ये डिटेल में हम करेंगे, फिर हम देखेंगे इस थोरेसिक आउटलेट एक सिंड्रोम होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली भी, और जब एनाटॉमिकली आपको ये पता हो थोरेसिक इनलेट का या आउटलेट का, तो फिर हम इसको देखेंगे कि किस ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये सुपीरियर थोरेसिक ओपनिंग पे ये पड़ा होता है, और ये क्लेविकल और फर्स्ट रिब के दरमियान जो है वो कंप्रेशन हो जाती है सब क्लेवियन आर्टरी की, इस वजह से ये सिंड्रोम होता है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, फिर ये सिंड्रोम की सिम्टम्स क्या होती हैं, फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। यहाँ पे देखें ना इस डायग्राम में बड़ा अच्छा शो किया गया कि ये कंप्रेस हो रही सबक्लेवियन आर्टरी एंड पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस जो कंप्रेस हो रहा है बिटवीन द क्लेविकल एंड द
रिब, ये सर्वाइकल एक रिब निकल आती है उसकी वजह से। वो क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे। ये एक और डायग्राम थी, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे ये थोरेसिक इनलेट और ये इसमें क्या क्या पड़ा होता है। ये अगर किसी को नीली पीली और इस तरह की डायग्राम करने का शौक हो तो ये वाली डायग्राम आप उठा के इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये थोरेसिक इनलेट पे ये स्ट्रक्चर्स कैसे पड़े हुए हैं थोरेसिक इनलेट पे, और हर चीज़ इसमें डिटेल से आपको मिल जाएगी। अगर ये पूरी स्लाइड आप उठा लें तो आपको ये सारे रिटर्न में भी नज़र आ जाएगा कि पोस्टीरियरली क्या है, एंटीरियरली क्या है, सुपीरियरली क्या है, और इसके मिनोमिक्स भी क्या है, कि इसमें इम्पोर्टेंट थिंग क्या है। ठीक है जी, ये आपको इसमें थोरेसिक इनलेट में ये भी एक डायग्राम है बहुत अच्छी जो आप देखें। इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर के नीचे वाला अपर्चर जो है ये लोअर वाला, ये क्या है, फिर इसको हम देखेंगे कि डायफ्राम असल में है क्या, और डायफ्राम बनता कैसे है, बना कैसे, और डायफ्राम के कौन कौन से पार्ट हैं और इसमें ओपनिंग कौन कौन सी हैं, कि जो कि इसमें से आर्टरीज या वेन्स या नर्व्स इसमें से पेयर्स करके अब्डोमेन में जाती हैं या अब्डोमेन से अपवर्ड आती हैं इनटू द थॉरेक्स, और नर्व्स कौन कौन सी नीचे जाती हैं ऊपर आती हैं, इसके पार्ट्स कौन से हैं, मस्कुलर पार्ट क्या है उसका, दूसरा टेंडिनस पार्ट क्या, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर। ठीक है जी, inferior thoracic aperture is closed by the diaphragm and structures passing between the abdomen and thorax pierce or pass posterior to the diaphragm. So that's why we will see the inferior thoracic aperture. Now here you have seen this diagram before, but here my purpose to show you this diagram is that now we will see inside the vital organs of viscera. So on both sides there will be lung, in the middle part there will be heart and great vessels, veins entering into the heart, arteries coming out of the heart, the trachea behind the esophagus, on both sides the lungs, the different parts of the lungs we will see. So then now we will see the inside the lung. Inshallah in next lecture we will inshallah see the further detail in the introduction, and till then I think so हम अगले पार्ट में हम फर्दर डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि ये विसराज कैसे अरेंज होते हैं और फिर हम इसको कैसे स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्टरी तौर पे हम कैसे देखेंगे, उसके आगे चलेंगे। बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह हाफिज।